शुक्ला जी सोने का सिक्का हाथ में लेके बोल रहे हैं ये उछालूंगा मैं, रखूंगा भी मैं। कैमरामैन ने कहा हाइट के हिसाब से खड़े होंगे। कस्टमरी स्माइल्स और एंड विद सिक्का दैट मैं लूंगा। टॉस के लिए उछालते हुए सिक्का शुक्ला जी। कैमरामैन ने कैमरामैन कहते हुए कि थोड़ा ऊपर चढ़ के उछालिए। और सिक्का हवा में और इसी के साथ सिक्का शोले वाला सिक्का। मैदान में तैयार, वार्म अप करते हुए। एक सम्मानजनक स्कोर जिसको डिफेंड करना चाहेगी टीम वुल्वरीन। उनके पास काफी अच्छे गेंदबाज हैं। और वेल्स जो कि कल एक छोटा टोटल जिन्होंने टारगेट चेज किया था, कल 88 रन का टारगेट चेज किया था और आज 96 रन का टारगेट उनको मिला है। कल जो आखिरी मैच था और आज सबसे पहला मैच। ये वाली तो आपको वैसे ही मिली होगी। कौन सी वाली? ये वाली जो मैंने पहनी हुई है। कैसे मिली? ये तो स्पोर्ट्स वालों ने दी है ना आपको। कहाँ दी है? दी है ना साथ हमारी पूरी टीम को बटी है ये वाली। अच्छा ये वो है। तो आप कौन सी सोच रहे हैं? मतलब देख ली मांग ली पता भी नहीं कि है नहीं है नहीं है दे दो जो मिल रहा है।
टीम वेल्स के लिए सलामी बल्लेबाज अविनाश जायसवाल और अनुकरण सिंह, और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे वुल्वरीन के लिए वसंत केसरी। सामना करेंगे अविनाश। The batsman nicely deflected that ball to the third man fence for 4 runs. A good cut by the batsman. He waited for the ball to come and guided the ball to the third man fence for 4 runs. गेंदबाज की गति का पूरा इस्तेमाल, सिर्फ बल्ले का मुंह खोल दिया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बहुत ही शानदार गेंद यहां पर, लेकिन थोड़ी दिशा से भटके वसंत केसरी। बहुत ही बढ़िया गेंद यहां पर वसंत केसरी के द्वारा, काफी तेज गति से गेंद ट्रेवल कर रही है और अच्छे कैरी है विकेट कीपर के पास। Batsman wondered whether it would be called a wide, but there was late movement. This one would definitely be called a wide. That was very outside off, and superb effort by Harshal there to collect that one. There is a movement in the pitch. The ball is moving, ball is drifting, but the bowler is not bowling at the right line. इस स्विंग का फायदा जहां गेंदबाजी टीम को मिलना चाहिए वहां बल्लेबाजी टीम को मिल रहा है, थोड़ा सा अंदर लाना होगा, यदि वहां से बाहर निकलेगी। Another wide, not a kind of start Team Wolverine want. There is definitely some movement, but it's a new ball, and at the moment Vasant is struggling to control the swing. और It's यहाँ not पर easy to ball with a new ball. और यहाँ पर टीम वुल्वरीन के बाकी खिलाड़ियों को फील्डर से बात, गेंदबाज से बात करनी होगी, थोड़ा बताना होगा उनको। Superb ball, just flicked for a single. Harshal running towards the fine leg and throwing it back. With that, score of Team Wales is 8 runs and 3 more balls to go. अब सामना करेंगे अनुकरण। इस ओवर में पहली बार Team Wolverine is aware that Team Wales batting lineup is not as strong as Wolverines. Any 2 or 3 wickets can make a difference. Anukaran taking stance, looking at the fielders, finding out who are the 2 fielders who are outside the circle. It's a full toss ball. We'll have to wait for umpire signal. Anukaran taking full benefit out of it, and it's a boundary. फुल टॉस गेंद पूरा फायदा उठाया, मिड विकेट की ओर घुमा दिया है। वहां पर कैच का प्रयास किया कुमार अभिषेक ने, लेकिन गेंद उनसे काफी ऊपर और अनुकरण ने भी अपना खाता बाउंड्री के साथ खोल लिया है। It was nice shot
waited for the ball, didn't try to hit it too hard. He's aware that there are field restrictions. He has to just cross the inner circle. And after that, definitely the ball would carry to the boundary. Another boundary. Drifting towards the leg. We'll have to wait for the umpire signal. It's a leg by for a boundary. Nothing going right at the moment for Team Wolverine. Nothing wrong with the ball. But too much of a drift. Major deflection from the pad. There was nothing much which Harshal could do there. The deflection was too wide. और केसरी के पास गति इतनी कि पीछे वाले फील्डर्स के पास भी कोई मौका नहीं उस गेंद को रोकने का. That's a wicket which they wanted. Superb wicket. And just look at Vasant. He is ecstatic. He is excited. He was unhappy with himself. And with this wicket, it seems that he has redeemed himself. That's the wicket, Anukaran. वसंत केसरी के पास गति है और उस गति से बल्लेबाज को छकाया और गिल्लियां बिखेर दी यहां पर. Just look at the joy he had after taking that wicket. He knows the importance of this wicket. He knows that they need to take only few wickets to put pressure back on Wales. Just this is the first ball of the over which was right when it comes to line and length, and there was subtle hint of swing. It moved in and dislodged the middle stump for Anukaran. With that, the score of Team Wales is 16 runs with the loss of one wicket at the end of one over. I think next batsman is. I would request Team Wales and Team Wolverine to send somebody from their dugout to scorers. बताए तो सही कोई. अरे batsman ने यहाँ पे dugout. Anmol. The next batsman is Anmol, right-handed. Amol. I would request to Team Wales to send somebody here. I think it's Amol Hogade, sir. नए बल्लेबाज अभी तक Gaurav Kumar, the next bowler. With that, a cheeky single right in the block hole. With that, we would welcome टीम our वेल्स respected ED Manoj Kumar sir to the commentary dugouts. Good morning, sir. Sir, Good morning. so far Wolverine team, which is known for their superb batting lineup, has not delivered to it, and they were able to score only 96 runs, and the target is 97 runs. Team Wales have done superbly so far, and now the score is 17 for 1 for Team Wales. So, Raman, as you know, sometimes the team which is more fancied, they fail to deliver. It has happened. You remember when we used to play there also with surveillance and all, we were playing, and it happened. First year we lost heavily. Not a single match we were able to win. But next year we had a huge dedication. I agree, sir. Luckily, fortunately, I was playing under you during that time, and next time you were able to become the champion, and the credit for that goes to you and your ability to take maximum out of each player. So we look forward to such more performance from you during this edition also, sir. Actually, credit goes to the dedication. First year when you lose very heavily, it hurts you. And then next year, it was a huge dedication by all players. We were able to win the trophy. Yes, sir. And inspiration actually comes from people like Ram Mohan Saab, who is still running marathon. Sir, in marathon you are competing with yourself. You are not competing with anyone. That is the great best part. So what essentially Ram Mohan Saab is saying that there is no competition for him. So he is competing with himself only. I think today also, sir, ran Atal Setu marathon today.
You are an inspiration, sir. You are an inspiration for SEBI people. I know to there fitness. are many inspirations from many people are there in SEBI. Maybe they are not exhibiting, that's all. So with that, the score of Team Wolverine has reached 20 runs, 1.4 over. Gaurav has batted beautifully for their team, and now he's contributing in terms of bowling also. He's a talented player. We are looking forward the best performance from the team Wolverines. और एवर एस्पायरिंग सतीश बाबू हमारे साथ आ चुके हैं। सतीश बाबू जी, आपका इस मैच के बारे में क्या कहना है? So the better team, whoever plays better will win. But चेयरपर्सन की तरह स्टेटमेंट मत दीजिए। according to me, the bowling team has a better chance. नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि सतीश बाबू जी का प्रेडिक्शन सही होने वाला था। ये अगर ये हर्षल पुंडे क्या? Harshal Punde is a wicket keeper, sir. I think there was a snake, but it's not easy to keep also because Harshal and other keepers who are keeping for their wicket for their team, they are not regular wicket keepers, sir. So it's really tough. So I know Harshad. I was fortunate to play with him, and I was also fortunate to see him scoring 5 fours in a single over. I was at the non-striker end. So Harshad is definitely an excellent player. Sir, he is having a close look at the wicket by doing wicket keeping so that he'll see the ball, and when he comes to bat, he will show his powers. Yeah, you are right, Satish Babuji. Harshal is a very keen observer of the game. But I am surprised that he is using the helmet at the wicket keeping end. another one straying towards the leg side and beautifully placed it for a boundary. That was not such a bad ball. The credit must go to the batsman for placing it rightly between the fielders. This is the first match. So first match of the day is less taxing on the players, but as the day grows, subsequently it becomes hugely taxing. So I don't know who is going to play next. I think we are playing next. Sir, yours is the next match, sir. Really tough, huh? Because today the prediction is that it is too hot. Weather is changing very fast. So today we'll be having a chance to play in opposite teams. Yeah. You are in MRD team? Wolverine, No, you are this side, na? There is one more team. Acha. So you are playing from the both the teams? वसंत केसरी कंधे का पूरा इस्तेमाल करते हुए अगर थ्रो सही एंड पर होता तो यहां पर एक नुकसान हो सकता था टीम वेल्स को, लेकिन थोड़ा सा मिक्सअप वहां पर बल्लेबाजों में और क्षेत्र रक्षण में भी मिक्सअप देखने को मिला। सही एंड पर थ्रो नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि विकेट में अचानक एक बाउंस आ गया है। बिल्कुल, और वो बाउंस वसंत केसरी के कंधे के अतिरिक्त इस्तेमाल की वजह से देखने को मिल रहा है। हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा। ये काफी एथलेटिक प्लेयर लग रहे हैं मुझे वसंत केसरी, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड कॉर्पोरेट टीम में भी काफी अच्छा रहा है। बिल्कुल सर। और सेबी के ट्रेडिशनल फोटोग्राफर संतोष सामल भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो हर मैच में रहते हैं, हर फंक्शन में रहते हैं, और जितनी मेरी जानकारी है ये शादी ब्याह में भी जाते हैं आजकल।
सेबी में बहुत सारे अधिकारियों की शादी में ये शामिल हुए हैं। संतोष सामल। Sir, just to add to what earlier you were saying, Vasant has worked really hard on his fitness in the last 1 year. Vasant to Avinash. तो मैच के अलावा मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दूं। तो संतोष सामल के बारे में मैं बता रहा था, ये जैसे जैसे सेबी ग्रो हुआ है इन टर्म्स ऑफ नंबर और स्ट्रेचर, वैसे वैसे ये भी ग्रो हुए हैं इन टर्म्स ऑफ हिज स्टमक। इफ यू सी, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने दाढ़ी भी बढ़ाई है और अपने पेट को भी काफी बढ़ाया है। स्कोर हो गया इसी बीच टीम वेल्स का 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति। 96 रन का टारगेट है, 97 रन का, और टीम धीरे धीरे उसकी ओर अग्रसर है। मैदान पर धीरे धीरे गर्मी बढ़ती हुई, धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ। और मैदान में नेहा मैडम भी हैं। मैडम, वेयर इज जुबिन? तो वो जुबिन को देखने के आई हैं। जुबिन, नाउ यू हैव टू परफॉर्म मैन। जुबिन बल्लेबाजी के लिए आएंगे यदि आवश्यकता हुई तो। अभी वो डगआउट में बैठे हैं। फिर से एक यॉर्कर गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहां पर गौरव के द्वारा। गौरव ने बल्लेबाजी भी बहुत ही अच्छी की और अब गेंदबाजी में अपनी टीम का। और कीर्ति भी यहाँ पर है जिन्होंने बहुत आतिशी बल्लेबाजी करी है इन पास्ट मैचेस। तो कीर्ति, आपकी सक्सेस का राज क्या है? बताइए कीर्ति सर, आपकी अरे कुछ नहीं, सफलता का राज बताइए। नहीं पता। कीर्ति सर बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, गेंदबाज, क्षेत्र रक्षक। सफलता का राज नहीं बताना चाहते हैं ताकि कोई और सुन ना ले, उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं। बढ़िया गेंद यहां पर, लेकिन थोड़ी दिशा से भटके और अच्छी कीपिंग वहां पर हर्षल पूर्ण के द्वारा। गौरव ने पिछले ओवर में मात्र 5 रन दिए थे और अभी भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। यहां पर 17 नंबर की जर्सी में सिद्धांत जंगम और उनके साथ साथ उनके पीछे राजेश कुमार मीणा भी देखने को मिल रहे थे। गेंद अगर सिद्धांत से छूटती तो राजेश उसको अपने कब्जे में लेकर बॉलर की तरफ धकेल देते हैं। राजेश कुमार मीणा ऑलवेज स्माइलिंग। और यहां पर उठाकर मारना चाहते थे, इतना स्कोर है नहीं, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर। और ये थोड़ा हार्श कॉल है, शायद गेंद पड़कर बाहर निकली, उसको वाइड दिया एम्पायर ने। और यहां पर स्क्वायर लेग की तरफ निकाल दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। लेग साइड पर खड़े एम्पायर ने अपने आप को बहुत ही तेजी से बचाया और 2 क्षेत्र रक्षकों के बीच से ये बाउंड्री रेखा को भेद दिया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। मारना कहीं चाहते थे लेकिन गेंद कहीं और गई। We have a special information for everybody. In our midst, we have respected Executive Director Mr. Rammohan Rao, who just ran a half marathon, and again he is back in the midst of us, and he is going to play again in the next coming match. Let us give a big round of applause for his effort. Sir, what is your secret? Sir, we will also try to follow your footsteps. Passion. Yes, passion. Everyone should have a passion. Thank you, sir.
और इसी के साथ पारी का चौथा ओवर समाप्त हुआ यहाँ पर, जहां पहले ओवर में 16 रन चले गए थे। धीरे धीरे टीम वुल्वरीन वापस आ रही है और अब 4 ओवर के बाद 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गौरव ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। अगर बात करें टीम वेल्स की, यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर शायद इन्होंने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सजाया है। पहले अविनाश, अनुकरण, अमोल, तीनों ए से स्टार्ट होने वाले नाम देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई विकेट गिरता है तो देखते हैं कि बी से कोई स्टार्ट नाम वाले खिलाड़ी आएंगे। और लगता है वसंत केसरी अपना तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये मैच जीतना है तो विकेटों से ही जीता जा सकता है। अगर लास्ट तक सोचेंगे कि मैं अपना आखिरी ओवर बचा के रखूं तो शायद देर हो जाएगी। तो अपना सब कुछ झोंकते हुए टीम वुल्वरीन राजेश मीणा बोलते हुए, उधर मुझे धूप लग रही है, मैं इधर खड़ा हूंगा, इधर थोड़ी धूप कम है। With this scoring rate, it seems to be an easy chase for Team Wales. Team Wolverine really need to do something to make this match interesting. बिल्कुल, जितना विशाल का नाम है वेल्स, उसी के सामने ये बहुत ही छोटा सा लक्ष्य है, जो कि 97 रन। Nicely played just for a single run there. These singles are helping the cause of Team Wales but not of Team Wolverine. They need to contain boundaries as well as singles also. They need to take wickets also. They have too many tasks at their hand. और कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पर रमन मोरवाल जी के सुपुत्र युवेन आए हैं। युवेन सबको गुड मॉर्निंग बोलना चाहते हैं। Good morning. गुड मॉर्निंग। Super ball. Extracting extra bounce by the use of his shoulder. Vasant Kesari is living to the expectations of his team, giving everything for his team there, trying to take some wickets so that his team could be brought back in the action. With that, score of Team Wales is 33. Another good one, another good ball, and with that, umpire has signaled two bounces for the over have happened. Or two more balls. Sorry. नाराज न हो गेंदबाज, आखिरी निर्णय अंपायर का ही होगा। यदि आप बाउंसर फेंकना चाहते तो आप फेंकिए। जर्सी नंबर 88 8-8 राजेश कुमार मीना वसंत केसरी से बात करते हुए कि कमेंटेटर तो बोलते रहेंगे, आप देखिए आपको बाउंसर डालना है नहीं डालना है। Rajesh telling Vasant why you are not bowling, but I taught you in the nets. अभिषेक यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे या नहीं देखना होगा, या फिर हमें राजेश कुमार मीणा की फिरकी देखने को मिलेगी। वो फिरकी बहुत अच्छी घुमाते हैं। Huge swing of the bat, but no connection. Another dot ball from Vasant. He's bowling superbly well. He's going to bowl the last ball of his bowling quota. Every bowler can bowl
Only maximum of 3 overs in a match. जहां पहले ही ओवर में 16 रन दिए थे वसंत केसरी ने, वहां अभी सिर्फ 17 रन दिए हैं और अपने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे. Is it out? It's drifting away from the leg stump, I think. Missing the leg. एम्पायर पर इस अपील का कोई असर नहीं और इसी तरह से वसंत केसरी के 3 ओवर समाप्त हुए जिसमें मात्र 18 रन दिए हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है. जहां पहले ओवर में ही 16 रन दिए, उसके बाद आखिरी 2 ओवर में मात्र 2 रन. Next bowler, I think, is Siddhant Jangam. Bowling to Avinash. Siddhant starting his over from the apartment's end. Making final adjustment in the field. रमन, वो अपार्टमेंट हमारे हैं क्या? Only if SEBI approves the loan. उसके बारे में बात ना ही की जाए तो ठीक. Wide ball. Siddhant not able to maintain the line. He's just starting an over. It takes time to get used to the wind, to the pitch. And still the ball is comparatively new. Siddhant to Avinash. Full toss ball. He has played it towards the long on just for a single. I think the fielder is Rajesh Meena there. Jersey number 88. It will be interesting to see whether the team Wolverine will bring spring to action to have some change in the bowling flavor. Nicely balled. A dot ball. Many such dot balls are required by Team Wolverine to make a match out of it. And Amol sir is on strike. He has been promoted in the order. सिद्धांत जंगम भी काफी स्पीड से गेंदबाजी कर रहे हैं. किसी भी तरह से वसंत केसरी से कम नहीं है इनकी स्पीड. जिस तरह से कीपर ने पकड़ा गेंद को, उससे पता चलता है कि स्पीड काफी अच्छी है गेंद की. काफी दूर खड़े हैं स्टंप से हर्षल पुंड. Just nudged it towards mid wicket. Gaurav fielded it. A single is taken. With that, score of Team Wales is 37 for 1. धीरे धीरे Another full toss. Hit towards the long on.
क्षेत्र रक्षण करते हुए यहाँ पर अभिषेक कुमार डी, और थ्रो फेंकने के बाद अपना कंधा पकड़ा उन्होंने, लगता है कंधे में थोड़ी चोट है। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम वेल। करंट रन रेट 6.67 का है और रिक्वायर्ड रन रेट 6.33, तो लगभग जितना चाहिए। कल भी यही स्थिति थी लगभग टीम वेल्स के लिए। धीरे धीरे अपनी रन गति को आगे बढ़ाया था इन्होंने और अंत में आकर थोड़ा तेज गति के साथ रन बनाकर जो लक्ष्य है उसको लगभग 13 ओवर में हासिल कर लिया था। And with that they helped their run rate also. And with that now Team Wolverine has brought Abhishek Kumar D to the bowling attack. एसपीएल 2023 में अभिषेक कुमार डी को गेंदबाजी करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार बल्लेबाजी के साथ साथ यहाँ पर गेंदबाजी भी देखने को मिलेगी। जर्सी नंबर 14 में अभिषेक कुमार डी, द डी स्टैंड फॉर डोडा मनी। Abhishek making some final adjustment to the field, and Avinash will be facing Abhishek. Abhishek asking fine leg, long leg to come fine. Nicely lurched towards the third man area just for a single. वहां पर किरण सावंत हैं क्षेत्र रक्षक, जिन्होंने बहुत अच्छे से गेंद को फील्ड किया और एक बशर्तिया बाउंड्री को होने से रोका। अभिषेक कुमार डी दूसरी गेंद लेकर Abhishek missing his line there and bowling a wide. Team Wolverine need to contain their extras because they already don't have much runs in their kitty. They can't afford to lose such runs by leaking extras. बिल्कुल Nicely played. Just back to the bowler. A dot ball. Abhishek knows that he needs to take a wicket for his team here and as well as contain the runs. From here, Team Wolverine have a chance of winning the match only if they are able to take some regular wickets. A short one, nicely cut towards the point area, deep backward point. Just for a single. With that, the score of team has reached 43. अब बात गेंद और रन के ऊपर आ चुके हैं। 51 गेंदे 54 रन। और इसी के साथ फिर दिशा से भटके और एक और वाइड। यहाँ पर एक सवाल कमेंट्री बॉक्स में आया है। एसपीएल 2024 के इस संस्करण में टीम आईवीडी को 2 भाग में बांट दिया है, तो सवाल है कि असली आईवीडी कौन है। राजेश नंबर जर्सी 88, बताएं असली आईवीडी कौन है। A single stolen there. Since Rajesh doesn't have a mic, so I'll try to answer that. There is no IVD, there is no IVD1, IVD2, MRSD. It's all SEBI with different name of the different teams. This is Team Wolverine of SEBI staff members. बहुत अच्छा जवाब। Nicely played for a boundary there. He dissected
just in front of mid wicket. The player was there, but it was a bit left from him and went for a boundary. सिद्धांत और राजेश मीणा के बीच में जो खाली स्थान था उसको भेदते हुए यहाँ पर एक बाउंड्री प्राप्त की है. काफी देर बाद एक बाउंड्री आई है. A classical shot by Amol Hogade sir. He is a technical batsman. He went on the top of the ball, middled it nicely. He reminded me of Azharuddin there. कलाइयों के जादूगर. Nicely drove towards the point region. और Just for इसी a के single. साथ टीम वेल्स के 50 रन पूरे हुए यहाँ पर. That too without taking much risk. Even after losing wicket of Anukaran, they have scored steadily and have reached a score of 50 runs. Still many overs to come. 7 ओवर में 50 रन बना लिए हैं टीम वेल्स ने. Now they require 47 runs in 48 balls. Even if they score run a ball, they would be able to win this match comfortably. But they would not like this match to go till the end. बिल्कुल. जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना अच्छा नेट रन रेट होगा. और यदि नेट रन रेट पर बात आएगी तो फिर वहां पर उनको मदद मिलेगी ऐसे मैचेस को अगर जल्दी खत्म करते हैं तो. Next bowling change. I think it's नीलेश गुगे. Nilesh is generally known for his fast bowling, but he has some ligament injury and a knee injury. To nurse that and not to put much strain on that, he is bowling spin this time in this edition of SPL. Yesterday, he was one of the good bowlers for Team Wolverine and took few wickets for them, important wickets. शॉर्ट थर्ड मैन और Nice ball, nice ball. Player thought that there would be some swing, but rather than swing, the ball just skidded and went straight to the keeper. Will this be a match-changing moment? Amol sir played it nicely towards long on for a single. Sorry, deep mid wicket for a single. गेंद की पिच तक पहुंचे और गेंद को सीधा धकेला. वन ऑफ द सेफ शॉट. A faint appeal. Maybe it was drifting towards the leg side, not hitting the stumps. With that, score of Team Wales have reached 52. Superb shot. Will it carry to the fielder? No. Just for a single. Went to long on. Couldn't time it well. यदि टाइम करते तो वहां पर कैच का मौका बन सकता था. Missing the line there and missing the fielders also. Was it a misfield or was it away from the fielder? It has gone for a boundary there. फ्लिक कर दिया है एम्पायर का इशारा. ये बल्ले से है रन. अविनाश जायसवाल के द्वारा ये बहुत ही शानदार Boundary. Avinash is scoring consistently, not taking any risk. He knows that this match is theirs. They need not panic. They just need to keep the scoreboard ticking. और लगता है गेंद नहीं मिल रही है क्षेत्र रक्षक को. प्लीज जरा मदद करें कहां पर गेंद है कैमरामैन अगर बता पाए I तो. would request players in the dugouts to help the fielding team. Brilliant effort from Kiran there. Piyush. With that, score of Team Wolverine is 57 with the loss of 1 wicket. अभी 40 रन चाहिए 43 गेंदों में.
और हल्के से टैप किया गली की ओर और 1 रन दौड़ गए दोनों बल्लेबाज। क्षेत्र रक्षण वहां पर किरण जर्सी नंबर 25 में। और इसी के साथ यह ओवर हुआ समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम वेल्स का स्कोर 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ ये ड्रिंक्स ब्रेक। It's quite hot and humid. It's a hot weather. Players need to constantly revitalize their body with electrolytes, water. Otherwise, there is always a chance of cramp. बिल्कुल, पानी है तो पिएंगे, पिएंगे तो खेलेंगे। यदि खेलना है तो पीते रहें जल, क्योंकि है जल तो है कल। No pun intended. I would here like to appreciate the fitness of umpires also in this hot and humid weather, constantly standing there for 30 overs, doing umpiring with strong dedication and constant focus. So far, the standard of umpiring has been very good. बिल्कुल, गेम को अच्छे से चलाया है दोनों एम्पायर्स ने, कोई विवाद नहीं होने दिया है। They are equally supported by the scoring team and the third umpire and the online and offline, both the scorers. So far, the streaming quality has been also very good. बिल्कुल, With that, drinks break have ended and players are resuming their positions. It will be interesting who would be the new bowler. और सिद्धांत जंगम आए हैं। थोड़ा विचार विमर्श चल रहा है, सिद्धांत कराएंगे या अभिषेक, देखना होगा। आई थिंक अभिषेक आ रहे हैं, अभिषेक कुमार डी। फिर की गेंदबाज का अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं है, ऐसा नहीं सोचा जा रहा है। I think Team Wolverine is missing a trick there. These two batsmen are having no problem in facing the medium pace and fast bowlers. They are rotating strikes between them, punishing the loose deliveries. Maybe change in pace would have done some trick for them. बिल्कुल, लेकिन ऐसा वुल्वरिन का मानना नहीं है, तो वो अपने गेम प्लान के हिसाब से जाएंगे। Avinash on strike. Abhishek to Avinash. राजेश यहाँ पर वार्म अप करते हुए लग रहे हैं, शायद अगला ओवर इनको मिलेगा। Siddhant Jangam sent to deep mid wicket. Maybe for a pull shot. Straying towards the offside and that's an extra. This has been a problem for Team Wolverine. At the start of the over, their bowlers are struggling to maintain the line and giving away too many extras. यहाँ With पर this small score, it's not conducive to their cause. यदि देखा जाए तो क्षेत्र रक्षक लेग साइड, ऑन साइड में बाउंड्री पर 4 खिलाड़ी हैं लगभग, और उसके बाद भी गेंदबाज थोड़ा ऑफ साइड की तरफ भटक रहे हैं। Just nudge for a single there. This batting pair is taking the score regularly. They are not facing any kind of trouble with this bowling attack. But with this, the story of the bowling has been this so far, that 2 good balls, 2 dot balls, 1 extra, then another dot ball, 1 boundary. This has been the story of the attack of Wolverine.
आपके में करेंगे ही नहीं। कोई नहीं गिर गया, ऐसे गिर गया। सुबह टाइम से उठा जाता नहीं है। और जैसा कि आपने कहा 2 डॉट बॉल और उसके बाद एक बाउंड्री, और यहाँ पर बाउंड्री देखने को मिली। आप भविष्य भी देखते हैं क्या रमन जी? I wish I had that ability, but this is the trend, and as in SEBI we rely on data, the past data also indicates so. द डेटा। Making some final changes in field. तो रमन डेटा पे बात कर रहे हैं, तो क्या कहता है डेटा? बहुत ही अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद गौरव कुमार जिन्होंने गेंद को एक टप्पे के बाद पकड़ा और वापस अभिषेक कुमार डी की तरफ फेंका। और पारी का 9वां ओवर समाप्त हो गया है। स्कोर है 66 रन, 66 पर 1। और अब 36 गेंदों पर 31 रन की आवश्यकता है। आखिरी 6 ओवर में मात्र 31 रन की जरूरत। अमोल होगाड़े, अविनाश जायसवाल पिच पर डटे हुए हैं। और यहां पर शायद एक खिलाड़ी रिटायर्ड होकर आ रहे हैं और नए बल्लेबाज हैं जुबिन, जर्सी नंबर 5। और जो वापस आए हैं वो बल्लेबाज अमोल सर वापस आ गए हैं अपना योगदान देने के बाद। अब जुबिन बल्लेबाजी करेंगे, साथ में होंगे अविनाश जायसवाल। बहुत बड़ा टास्क नहीं बचा है। अब 36 गेंदों पर 31 रन की आवश्यकता और पूरे 9 विकेट हाथ में है। वहीं टीम वुल्वरीन के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। उन्होंने काफी बदलाव किए हैं अपनी गेंदबाजी में, लेकिन एक सफलता जो वसंत केसरी ने दिलाई थी अपने पहले ही ओवर में, उसके बाद पारी के 8 ओवर और हो चुके हैं। मतलब कुल मिला के 9 ओवर, जिसमें सिर्फ एक ही विकेट गिरी है टीम वेल्स की। वसंत एक छोर से दूसरी ओर काफी फिट नजर आ रहे हैं इतनी गर्मी में भी। और नए गेंदबाज हैं सिद्धांत जंगम। और इसी के साथ ये पहली गेंद पर यहां पर आउट हुए हैं जुबिन, क्लीन बोल्ड। सिद्धांत जंगम की अच्छी गेंदबाजी यहां पर। क्या अभी इस गेम में कोई ट्विस्ट देखने को मिलेगा? स्थिति बेहद ही आसान लग रही है टीम वेल्स के लिए, लेकिन क्या टीम वुल्वरीन कोई चमत्कार करने के मूड में है? नए बल्लेबाज निहाल जाते हुए, जर्सी नंबर 45, 4 और 5। कल इसी जर्सी का जिक्र हुआ था तो स्कोरर ने रोहित शर्मा इनको आंका था कि रोहित शर्मा जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखते हैं रोहित शर्मा गए हैं या निहाल। कुल मिलाकर टीम को जरूरत है अभी और बल्लेबाजी की। बहुत ही बढ़िया गेंद यहां पर सिद्धांत की। एक विकेट के बाद थोड़ा उत्साह और उनकी गति वापस आई है।
पॉइंट की तरफ खेला, वहां पर राजेश मीणा बाउंड्री रेखा के नजदीक गेंद को पकड़ा और किसी दूसरे रन की संभावना को समाप्त किया। केवल एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर बढ़कर हो गया है टीम वेल्स का 68 रन। लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है, वहां पर केवल एक ही रन मिलेगा। धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए टीम वेल्स के बल्लेबाज। अच्छी गेंद कट करना चाहते थे लेकिन चूके निहाल और गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में। और इसी के साथ ये एक सफल ओवर समाप्त हुआ है सिड सिद्धांत का। अपनी जर्सी पर सिड लिखते हैं। अब 30 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता, लेकिन वसंत केसरी अपने 3 ओवर खत्म कर चुके हैं। तो अब पारी का 11वां ओवर लेकर आ रहे हैं नीलेश 10 नंबर की जर्सी में। एक विकेट लेने के बाद टीम वुल्वरीन फिर से उत्साहित मैच में बने हुए और टीम वेल्स को थोड़ा और मशक्कत करनी होगी इस आसान लक्ष्य को हासिल करने में। मैदान पर सुनील मेत्री और अंजरुल धूप का आनंद लेते हुए। गली की ओर खेलकर 1 रन बटोर लिया है टीम वेल्स के बल्लेबाजों ने। धीरे धीरे अविनाश 34 रन के स्कोर पर पहुंच गए हैं। बढ़िया गेंद, पूरा सम्मान। थोड़े असहज महसूस कर रहे हैं गेंदबाज गेंद को उठाते हुए। चोटिल हैं शायद, फिर भी अपनी टीम के लिए और इसी के साथ ये मारना कहीं चाहते थे लेकिन थर्ड मैन दिशा की ओर गेंद चली गई है। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। यहां पर शॉर्ट थर्ड मैन रखा था 30 गज के दायरे में, लेकिन गेंद उसको टपाते हुए बाहर चली गई गेंद 4 रन के लिए। और धीरे धीरे टीम वुल्वरीन की जो आशाएं हैं वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है खत्म हो रही हैं। अब मात्र 23 रन की आवश्यकता है। बहुत ही शानदार गेंद, बढ़िया वापसी यहां पर नीलेश की। यहाँ पर मिड विकेट के ओर मार रहा, लेकिन वहां पर सिड थे लेकिन वो नाकाम रहे गेंद तक पहुंचने में। अच्छा प्रयास सिड का, लेकिन गेंद एक और बाउंड्री इस ओवर में। और धीरे धीरे टीम वेल्स अपनी रन गति को आगे बढ़ाते हुए स्कोर हो गया है 78 रन। और इस बार चूके बल्लेबाज और इसी के साथ ओवर समाप्त। टीम वेल्स का स्कोर 11 ओवर की समाप्ति के बाद हो गया है 78 रन 78, 3 विकेटों के नुकसान पर।
24 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता है अब। देखते हैं अगले गेंदबाज कौन होंगे। 24 गेंदों में 19 रन। अभी भी मैच में काफी कुछ बचा है, मैच फंसाया जा सकता है अभी। सिद्धांत जंगम आएंगे अपना तीसरा ओवर लेकर। पांच गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है टीम वुल्वरीन ने अभी तक। वसंत केसरी, गौरव कुमार, सिद्धांत जंगम, अभिषेक कुमार डी और नीलेश गुगे। गेंद को फुल टॉस लिया और निकाल दिया। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। सिद्धांत जंगम जो कभी काफी किफायती महसूस कर रहे थे, लेकिन यहां पर पहली गेंद को गेंद के सीमा रेखा के बाहर भेजा। जिन्होंने अपने पहले 2 ओवर में मात्र 9 रन दिए थे, अभी तीसरे ओवर की पहली गेंद पर बाउंड्री। मैच में बहुत गर्मी है। अच्छी गेंद, उसको पूरा सम्मान देते हुए बल्लेबाज नेहा। मिड विकेट की ओर खेलकर 1 रन चुरा लिया है यहां से, यहां दोनों बल्लेबाजों ने। फाइन लेग की ओर घुमाया यहां पर क्षेत्ररक्षक पीयूष, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और वापस कीपर की ओर फेंका। इस बीच 2 रन ले लिए हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट अपने फॉलो थ्रू में, यहां पर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया और कोई भी रन बनने से रोका। 18 गेंदे 11 रन, आखिरी 3 ओवर। अनुकरण जो सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, अब अपनी टीम के लिए, अपने टीम के खिलाड़ियों के लिए पानी लेकर गए हैं। पूरा समर्पण अपनी टीम के लिए। टीम वुल्वरीन अब क्या निर्णय लेगी, कौन फेंकेगा ये पारी का 13वां ओवर। नीलेश आ रहे हैं अपना तीसरा ओवर लेकर। इससे पहले 2 ओवर में 16 रन दिए हैं नीलेश ने, और सिद्धांत जंगम अपने 3 ओवर में 17 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। वुल्वरीन के लिए एसपीएल 2024 की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। कल अपना पहला मैच हारकर आज दूसरा मैच खेल रहे हैं, और स्थिति यहां पर भी काफी नाजुक।
स्वीप करना चाहते थे, चूंकि गेंदबाज ने मुड़कर एम्पायर की ओर देखा, एम्पायर ने अपील को नकारा और रनों में कोई इजाफा नहीं। उठाकर मार दिया है, गेंद हवा में काफी देर तक, और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अब मैच को जल्दी खत्म करने के मूड में लग रहे हैं टीम वेल्स के बल्लेबाज निहाल सिंह। फिर से घुमा दिया है मिड विकेट पर, गेंद को सिद्धांत जंगम ने पकड़ा और बॉलर्स की तरफ फेंक दिया है। स्कोर बढ़कर हो गया है 91। आगे बढ़कर खेला है लॉन्ग ऑन की ओर और वहां पर फील्ड किया। बढ़िया गेंद वहां पर नीलेश के द्वारा, और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। अब मात्र 5 रन चाहिए। गौरव आए हैं। अविनाश ने मारा है लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर अभिषेक कुमार डी अच्छी फील्डिंग की वहां पर उन्होंने। बहुत ही अच्छी गेंद, यहां पर पुल करना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। और ये पॉइंट और गली के बीच से निकाल दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और इसी के साथ यहां पर टीम वेल्स विजयी बनी। जो लक्ष्य है उन्होंने 13.2 ओवर में हासिल किया। अपना रन रेट काफी बेहतर, कल के बाद दोबारा लगभग 13 ओवर में ही कल जीते थे और आज भी। और सर्वाधिक स्कोर यदि बात करें तो बल्लेबाजी में अविनाश जायसवाल जिन्होंने 43 रन बनाए। टीम वेल्स ने 13.3 ओवर में 97 रन बनाए हैं। वुल्वरीन ने जहां 96 रन बनाए थे अपने निर्धारित 15 ओवर में, 97 रन का लक्ष्य दिया था, उसको आसानी से हासिल किया। मात्र 3 विकेट गए जिसमें एक रिटायर्ड भी थे।